Friends, very good evening. Last time we have discussed the dipole, electric dipole. That was important part and theories about to prepare. So electric dipole here. So what we have understood in the last part. So if you remember, in the previous part we discussed the dipole in which we have two identical, say, of same value. We have two charges, okay, and they are separated by finite distance. Say the distance between them is 2a, okay. So easily the half distance can be a. It is to remember because just we are going to discuss that the one of this charge is q, this is positive, and one same amount of the charge which is negative. And the dipole moment, we have derived a brand new quantity called the dipole moment, which is 2a. So the distance between two charges into q multiplied by q, and it is vector quantity, hence it is in the direction from negative charge to positive charge. This is the direction of dipole moment. The unit of dipole moment, it stands for coulomb, stands for the q, and meter stands for 2a, hence coulomb meter, something like this. So this is the unit for the dipole moment. So this is dipole, and we will see this dipole in many practical life. Most of the molecules are dipole. They are called polar molecules, and something that has no dipole moment at all, they are called non-polar molecules. That will learn we in second chapter before capacitance. Okay, now our important theory. It will be asked you that find the electric field or derive the equation for the electric field at the point on axis of a dipole. Electric field at the point of axis of a dipole. So this is the IMP theory, and you have to write down in your notebook. This is good to tell you that in our book the same theory has been given, but you will not prepare these theories from our book. It is much similar topic, but let me first tell you about the theory that has been given in the book. Here the electric dipole. So the theory has been given in 1.11, but one thing that I would like to tell you, that you might surprising that few topics that have been given in our book, so we have not discussed these topics so far. Okay, so यहाँ पर हम जो सीक्वेंस की बात करते हैं, तो सीक्वेंस को लेके हम चलेंगे तो बुक में जो टॉपिक्स है वो बाद में आएंगे. पहले ये जो डायपोल वाला टॉपिक है वो आएगा, और डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फाइंड करेंगे. बाद में जो फ्लक्स वगैरह जो दिया गया है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर इफ़ वी गो स्टेप बाय स्टेप. हेंस द फर्स्ट टॉपिक इन द सीक्वेंस इज इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके, द फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल. तो इसमें जो हमें थियरी दी गई है, द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, यहाँ पर जो लिखा गया है, हम ये वाला प्रिपेयर नहीं करेंगे. इससे अच्छा वाला और इजीली हम रिमेंबर कर सकें ऐसी थियरी यहाँ पर है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा. चलो तो हम देखते हैं यहाँ पर थियरी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ डायपोल. तो समझो हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो ये वाला हमारा बन गया वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस. ओके, तो जो हमेशा की तरह हम बोलते हैं
इस तरह से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस लेंगे और ये जो है वो वाई एक्सिस लेंगे। हमारा जो डायपोल है वो कैसे यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो हमारा डायपोल यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ये वाला बन गया पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और ये नेगेटिव चार्ज। तो हमारा डायपोल जो है उसकी एक्सियल लाइन जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करती है, यहाँ पर बनती है हमारी एक्सियल लाइन। ये डायपोल की एक्सिस बन गई। और डायपोल का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पर कोइंसाइड होता है। यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट है डायपोल का, तो वो एग्जैक्टली ओरिजिन पर कोइंसाइड होता है। तो ये वाला इजी बन गया, आप समझ सकते हैं। तो हमें जो फाइंड करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और वो भी एक्सिस ऑफ द डायपोल। वो कहाँ पर फाइंड करना है? एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने जो आगे बात की थी उस तरह से दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम हमेशा बोलते हैं 2a है। ओके, और हमारी जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज तरफ, इस तरफ हमारी डायपोल मोमेंट रहती है। ये हमारी डायपोल मोमेंट बन गई p वेक्टर। ओके, सो अब हम कहेंगे कि भाई ये वाला हाफ डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि वो वाला डिस्टेंस a रहेगा, बिकॉज टोटल डिस्टेंस कितना है 2a है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से लेकर यहाँ तक ओरिजिन तक हाफ डिस्टेंस a हो गया। तो नीचे का भी हाफ डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला भी a हो गया। ओके, इसलिए हम हमारा टोटल जो डिस्टेंस है वो 2a लेते हैं। आप समझ सकते हैं बात को। चलो दूसरी बात, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो हमें एक्सियल लाइन पर, मतलब कि एक्सिस पर फाइंड करना है। तो ये वाई एक्सिस है वो हमारी एक्सिस है, डायपोल की एक्सिस। यहाँ पर समझो कि कोई पॉइंट है P, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और ये P पॉइंट जो है वो कितना दूर है उसकी भी हमें बात करनी है। तो P पॉइंट समझो कि हमारा जो ओरिजिन है, हमारा जो मिड पॉइंट है, वहाँ से समझो कि वो y डिस्टेंस जितना दूर है। आप वो डिस्टेंस r भी ले लेते, अगर r ले लेते तो बुक के हिसाब से वो कैलकुलेशंस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम वो डिस्टेंस y लेंगे। अगर वो कैलकुलेशन हमें x पर करना है तो वो x लेंगे, वो वेरी ऑब्वियस चीज़ है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है कौन सा, तो हमारा जो P पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस है, उसको हम y कहेंगे। चलो पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर हमें जो डायपोल दिया गया है उसकी डायपोल मोमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे द डायपोल मोमेंट दैट इज गिवन हियर इज 2aq। ये हमारी डायपोल मोमेंट है, सॉरी ये हमारी डायपोल मोमेंट है। ओके, तो ये जो डायपोल है उसकी डायपोल मोमेंट हमें हमेशा लिखनी है, क्योंकि अगर हम डायपोल मोमेंट लिखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा। हमेशा आपको याद रखना है, वेन एवर द केस इज गिवन अबाउट द डायपोल यू मस्ट हैव टू राइट द डायपोल मोमेंट, बिकॉज डायपोल मोमेंट गिव्स यू द आइडिया ऑफ द डिस्टेंस विच इज़ 2a। सो डायपोल के बीच में जो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है वो 2a है, और उसमें चार्ज कितना है तो q है, तो वो हमें आइडिया देगा। चलो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो दो चार्ज को लेकर बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और नेगेटिव चार्ज है वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो समझो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसा रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई पॉइंट के पास अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वहाँ पर हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज अज्यूम करना है। समझो तो पॉइंट P के पास यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लगाएगा। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगा। ओके, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, चलो वो हम बताते हैं आपको यहाँ पर सिमुलेशन में। समझो कि यहाँ पर हम एक डायपोल बनाते हैं, ये वाला हमारा एक डायपोल है। चलो, +1 नैनो कूलम का दोनों चार्ज का यहाँ पर एक डायपोल बन गया। चलो थोड़ा इधर हम रखते हैं, तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्सियल लाइन हो गई डायपोल की, और ये हमारा बन गया एक्स एक्सिस। ओके, आप समझ सकते हैं इस बात को। और हमें ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पर ये पॉइंट P है,
यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले सिर्फ इतना सोचो कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसको लेकर पी पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे और उसको पी पॉइंट पर रहेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल देते हैं, चलो बनता है E1 इज इक्वल टू, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, E1 बोल सकते हैं, E प्लस बोल सकते हैं। E प्लस अगर लिखेंगे तो उसका मतलब है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। चलो लिखते हैं E प्लस, कोई भी लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग दैट मैटर एंड टू माइंड मच। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, हमारा इक्वेशन क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको पता होगा। हमारा इक्वेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R²। आपको पता है कोई भी पॉइंट चार्ज है उसको लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, KQ/R²। चलो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा KQ/R²। बट हियर ये जो डिस्टेंस है वो चार्ज से लेकर पॉइंट के बीच का है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। चलो तो ये टोटल डिस्टेंस है वो y है, यहाँ से लेकर ओरिजिन का टोटल डिस्टेंस y है। इसमें ये वाला जो डिस्टेंस है वो a है, इतना डिस्टेंस a है। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है y माइनस a वाला होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, y माइनस a। चलो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y माइनस a। ओके, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट के बीच का है, उसका स्क्वायर। तो R² हो गया हमारे केस में। चलो तो थियरी में आप ये भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि ये डिस्टेंस R ले सकते हो, तो ये R माइनस ए हो जाएगा। Y हमने लिया है तो Y माइनस ए हो जाएगा। तो ये तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगा, मैं समझ सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, ड्यू टू विच चार्ज, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। ओके, चलो अब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज को लेकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। चलो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखते हैं तो E माइनस लिखते हैं, E माइनस। ओके, सबस्क्रिप्ट जो है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। चलो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो KQ बाय, चलो नेगेटिव चार्ज के चार्ज को लेकर हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैंने साइन कंसीडर नहीं की, क्यों साइन कंसीडर नहीं की यहाँ पर, क्योंकि क्यू जो है उसकी साइन मैंने क्यों कंसीडर नहीं की, बिकॉज यहाँ पर हम स्केलर कैलकुलेशंस करते हैं, वेक्टर कैलकुलेशन नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ अभी। चलो बाय R² जो डिनोमीटर में लिखना है, तो ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना हो गया यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस, तो वो बन जाएगा इतना डिस्टेंस y जितना है और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस a जितना है, तो वो बन जाएगा y प्लस a²। चलो तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए। चलो समझो कि यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जो डायपोल बनाने के लिए। तो चलो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो एज्यूम करते हैं ना टेस्ट चार्ज वो पॉजिटिव है। तो हमारा नेगेटिव चार्ज एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, इस तरफ, ड्यू टू विच चार्ज, नेगेटिव चार्ज। वैल्यू कितनी, KQ/Y प्लस A²। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, मतलब कि अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज को रखते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये जो दोनों है चार फील्ड, उसका हमें क्या करना है, तो एडिशन करना है, वो सिंपल बात है। चलो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P इज इक्वल टू E प्लस मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस E माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों का हमें एडिशन करना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें उसका एडिशन करना है। चलो तो यहाँ पर E प्लस की वैल्यू मुकते है, तो वो है KQ/Y माइनस A² प्लस E माइनस मतलब कि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है KQ/Y प्लस A²। तो ये हमारा हो गया एडिशन। चलो यहाँ पर एक बात हमें
कंसीडर करनी है, जो मैंने अभी बताई थी कि यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो स्केलर कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर हमने जो चार्ज है उसकी साइन नहीं रखी थी, पर समझो कि अगर इसे हम वेक्टर कैलकुलेशन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वेक्टर कंसीडर करते हैं, तो हमारी साइन क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो ई प्लस जो है उसका अगर हम वेक्टर डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर लेते हैं, तो ई प्लस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देख सकते हैं कि जो हमारा डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन में ही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला डायपोल मोमेंट है ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है। तो अगर हमें ये वेक्टर कैलकुलेशन करना है तो पीछे हम ऐसा लिख सकते हैं पी कैरेट। पी कैरेट मीनिंग क्या, कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पी वेक्टर जो है, मतलब डायपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन में है। सिमिलरली हमें जो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारा जो डायपोल मोमेंट है उसके ऑपोजिट में है। तो उसमें अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं माइनस पी कैरेट, मीन्स क्या कि पी कैरेट की ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो गया वेक्टर कैलकुलेशन, पता चला आपको। माइनस लिखा मतलब कि पी कैरेट की जो डायरेक्शन है, मतलब कि अपवार्ड डायरेक्शन है, उसकी ऑपोजिट माइनस लिखा। तो अगर हम यहाँ पर जो वेक्टर कैलकुलेशन करते हैं, इस तरह से वेक्टर कैलकुलेशन करते हैं, तो ये वेक्टर जो है के क्यू बाय वाई माइनस ए स्क्वायर पी कैरेट लगते हैं, और यहाँ पर जो ई माइनस है उसकी वैल्यू क्या लगते हैं, माइनस के क्यू बाय वाई प्लस ए पी कैरेट। चलो, तो ये हो गया वेक्टर कैलकुलेशन। तो आपने दोनों चीज़ें देखी, अगर स्केलर कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, वेक्टर कैलकुलेशन करते तो आएगी। हमें वेक्टर से ही कैलकुलेशन करना है। चलो, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन निकलेगा के क्यू। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पर डिनोमिनेटर में रहेगा y माइनस ए स्क्वेड। ओके, और यहाँ पर माइनस रहेगा, ये माइनस इधर है, प्लस माइनस मीन्स माइनस, और यहाँ पर जो कॉमन निकल गया, मतलब कि कॉमन निकल गया, तो रहेगा 1 बाय डिनोमिनेटर में y प्लस ए स्क्वेड होल थिंग स्क्वेड, और जो पी कैरेट है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, वो भी कॉमन ही है। ओके, चलो, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैलकुलेशन में अगर हम जाते हैं तो के क्यू बाय, इसका हम क्या करें, तो ये जो है उसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना है मतलब आपको पता यह होगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगी, y प्लस ए होल स्क्वायर वाली चीज़ है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। पता चला आपको। चलो, अगर आपको एलसीएम, मैं सोच लेता हूँ कि आपको एलसीएम पता नहीं है इस केस का, तो 1 बाय ए होता है माइनस 1 बाय बी होता है। इसका हमें अगर एलसीएम लेना है तो ये b है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मतलब b माइनस ए जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो a बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन लास्ट में, ये हमारा एलसीएम होगा। तो इस तरफ से हम देखते हैं, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो y प्लस ए स्क्वेड माइनस ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, टर्म y माइनस ए स्क्वेड, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन लास्ट में। ये जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें a माइनस बी और a प्लस बी इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में पता होगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होते हैं तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर समझो कि यहाँ पर उसका पावर है स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, तो ये जो रहेगा उसका भी रहेगा स्क्वायर। आप समझ गए, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर भी रहेगा क्यूब, तो ये वाला एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और दोनों के ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो रहेगी स्क्वायर। हो गया, और लास्ट में रहेगा पी कैरेट। चलो, तो ये जो इक्वेशन हमारा बन गया,
उसको हम आगे एक्सपांड करते हैं कि क्या बनेगा। चलो तो के क्यू वाई प्लस ए स्क्वायर, उसका एक्सपांसन हम करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई ए प्लस ए स्क्वायर। ओके, उसका एक्सपांसन हो गया, माइनस इसका हम एक्सपांसन करते हैं, ब्रैकेट में करते हैं, आगे नेगेटिव है इसलिए कुछ केयर लेते हैं, तो इसका एक्सपांसन करते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई ए, ये चीज़ें तो आपको पता होगी, प्लस ए स्क्वायर। So it is sometime very silly to talk about this, but we are in the initial stage, hence we will go। चलो ये जो टर्म है वो वैसा ही रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म ऐसा ही रहेगा। ओके, उसका कुछ नहीं होगा। चलो और लास्ट में रहेगा पी कैरेट, एक्सपांसन किया, दैट इज द थिंग। चलो अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। चलो यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और मतलब साइन चेंज होगी, वो तो आपको पता चला। और वैसे हम देखें तो ये वाई स्क्वायर है वो निकल जाएगा और जो ए स्क्वायर है वो भी निकल जाएगा। हमारा इक्वेशन अब बचा के क्यू, यहाँ पर 2 प्लस 2 दैट इज 4 वाई ए, और डिनोमिनेटर में है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल थिंग स्क्वायर, लास्ट में रहेगा पी कैरेट। चलो ये हमारा मोस्टली इक्वेशन बन गया, पर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हमें करना है। तो समझो कि ये जो के क्यू है और ये जो 4 है उसका मैं लिख देता हूँ 2 × 2। ओके, मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो मैं लिख देता हूँ 2 × 2 और वाई ए बाय वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑल थिंग्स स्क्वायर। चलो तो मैंने क्या किया है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, जो 4 है ये करना जरूर नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, पर पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर जो 4 है उसका मैंने लिखा 2/2। चलो आपको पता है कि डायपोल मोमेंट उसका इक्वेशन क्या था, तो डायपोल मोमेंट का इक्वेशन था 2AQ, पता है ना आपको। ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो 2AQ है। यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर जो A है और जो Q है उसकी जगह से हम क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं P। तो इक्वेशन क्या बनेगा, चलो 2 यहाँ पर बचा तो मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पर है K। ओके, ये जो Q2 और A जो है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ P बचा Y। ओके, बाय लास्ट में है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर। चलो चलो तो ये हमारा हो गया इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कंसिडर्ड पॉइंट से P, ये हमारा इक्वेशन हो गया। जो इक्वेशन है वो यहाँ पर हमने डिराइव कर दिया, ये वाला इक्वेशन 2kpz बाय जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो तो यहाँ पर z है, यहाँ पर y है, और अगर बुक में हम देखेंगे तो वहाँ पर a होगा का, इधर का हमारा इक्वेशन, तो वहाँ पर r है, ये वाला। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस, सो डिफरेंस इज नथिंग, आपने क्या कंसीडर किया है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने जो एक्सिस लिया था वो y है, तो वो इक्वेशन में y रहेगा। ओके, यहाँ पर z लेते हैं तो z रहेगा, सो दैट डज नॉट मैटर। बट आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि x y एक्सिस है, y एक्सिस पर जो हमें डिस्टेंस लेना है उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो आप मेंशन करना होगा, तो हमारा इक्वेशन उस तरफ से बनेगा। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं, बट इम्पोर्टेंट है 2kpy। ओके, यहाँ पर समझो कि r ले लेते हैं, डिस्टेंस जो है y की जगह लेते, तो क्या इक्वेशन बनेगा बुक के हिसाब से, तो इक्वेशन बनेगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp फॉर एनी डिस्टेंस r बाय r माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल थिंग स्क्वायर पी कैरेट। तो ये r वाला इक्वेशन हो गया।
ये आप तो इजीली समझ सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, समझो कि यहाँ पर हमारा जो डायपोल था, यहाँ पर हमारा जो डायपोल था, यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वो पॉइंट अगर काफ़ी दूर होगा, काफ़ी दूर होगा, तो ये वाली फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी। आप समझ लो इस बात को कि यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमने जो कंसिडर किया था वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमारा डायपोल का पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये जो पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो अगर काफ़ी दूर रहेगा तो ये जो डिस्टेंस हमने लिया था वाई डिस्टेंस, वो ए के रिस्पेक्ट्स में खूब ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से वाई वाला डिस्टेंस खूब ज़्यादा हो जाएगा, तो वाई बिकम्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो ये जो कैलकुलेशन है उसमें हम जो ए है उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट व्हेन, ओनली व्हेन द पी इज़ वेरी फार अवे। अगर P जो पॉइंट है वो काफ़ी दूर है तो जो इक्वेशन है उसमें हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ओनली व्हेन द पॉइंट इज, चलो यहाँ पर लिखा होगा, इफ Z वेरी वेरी ग्रेटर देन A, हमारे केस में बोलेंगे तो Y वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन विथ Z स्क्वायर। चलो, तो यहाँ पर जो A स्क्वायर उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर नॉमिनेटर में बचा 2kp y बाय डिनोमिनेटर में y स्क्वायर, उसका ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, मतलब y⁴ हुआ। ओके, p कैरेट। चलो, यहाँ से एक y, यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो हमारा जो यहाँ पर जो पावर है y गेट्स कैंसल, तो यहाँ पर पावर क्यूब हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इक्वेशन हमारा ये बचा, यहाँ पर आपको यहाँ तक लिखना है। चलो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल लाइन पर था, तो आपको यहाँ से वो थियरी प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर जो अगर यहाँ पर हम जेड एक्सिस लेते हैं तो जेड लिखना है। चलो, मान लो कि आप नोटबुक में थियरी लिखते हैं, अगर जेड रखते हैं तो जेड लिखना है, अगर मैंने बताया यहाँ पर इस तरफ से वीडियो में देख के करते हैं तो वो वाई रहेगा। चलो, ये वाली जो बात है वो नहीं लिखनी, ये नेक्स्ट थियरी के लिए है, तो ये अभी तक ये नहीं लिखनी है। हमें फिगर कितनी चाहिए, तो फिगर में हमें यहाँ पर एक y एक्सिस और z एक्सिस जो भी बोले वो और एक्सिस, इतनी फिगर ड्रॉ करनी है। फिर आपको यहाँ पर x, यहाँ पर अगर y लेते हैं तो y यहाँ पर, और जो डायपोल है वो इस तरह ड्रॉ करना है, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो मेंशन करना है 2a, और यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो मेंशन करनी है p वेक्टर। ये बन गया ओरिजिन। ओके, यहाँ पर जो पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E+ हमें ड्रॉ करना है, और जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है स्लाइट स्मॉल और नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, ये वाला इतना। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ पर, अगर हम PDF के हिसाब के यहाँ से देखते हैं तो वो Z रहेगा, मैंने समझाया वहाँ Y है। बस इतनी फिगर ड्रॉ करनी है, ज़्यादा कुछ ये सब ड्रॉ नहीं करना है। पता चला आपको, ये सेकंड नेक्स्ट अपकमिंग थियरी के लिए। और वी वांट टू डिटरमाइन, यहाँ से एज शोन इन फिगर, चलो वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। चलो, पॉइंट P के पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। लेट द पॉइंट P विद डिस्टेंस Z फ्रॉम द ओरिजिन, उसका ओरिजिन यहाँ से लेकर डिस्टेंस वो Z है। Hence the distance of the point P will be Z minus A and Z plus A from the charges plus Q and minus Q। तो प्लस Q से डिस्टेंस वो Z plus A और Z minus A जो रहेगा वो हमें मेंशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को लेकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज को लेकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो लिखना है इलेक्ट्रिक। और अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें उसका एडिशन करना है, वो एडिशन। अगर यहाँ पर जो एडिशन करते हैं, देखा आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप और सीधा एक लास्ट स्टेप, उन्होंने एक्सपांसन, LCM बाकी कुछ बताया नहीं। यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बताया कि कैलकुलेशन अगर हम करने जाए तो हमारा कुछ ऐसा रहेगा। आपको ये लिखना है कि नहीं वो एकदम आर्बिट्ररी, मतलब कि आप वो स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सीधा आंसर पता है यहाँ पर फॉर जेड हो जाएगा तो वो स्किप कर देना है।
तो ऑब्वियसली वो हम स्किप कर सकते हैं एक बार समझने के बाद। तो यहाँ पर हो गया, अगर वो पॉइंट फार अवे है तो क्या आंसर रहेगा, यहाँ तक हमें लिखना है। तो ये आईएमपी थियरी यहाँ पर रहेगी। चलो बुक में देखते हैं। तो ये भी यहाँ पर है। बुक में क्या है कि जो के है यहाँ पर ऑलवेज बुक में क्या लिखेगा कि के की जगह उन्होंने हमेशा 4πε0 लिखा होगा। ओके, और वो लिखना थोड़ा टीडियस रहेगा। हर बार हमें 1/4πε लिखना होगा तो थोड़ा हार्ड रहेगा। हम के ही लिख देंगे हमेशा। चलो, तो यहाँ पर हमारा आंसर सेम है। ये जो फिगर है वो काफ़ी कंफ्यूज करने वाली है। ओके, वो 3 डायमेंशन में ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो फिगर है वो भी कंफ्यूज करने वाली। ये वाली इजी फिगर है, ये आप ड्रॉ करेंगे। आई होप कि आपको इस थियरी में पता चल गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।